Good evening, everyone. Welcome to StudyIQ. तो जो परिपूर्ण सेशन रही आपण मैंने जानते एंड ये जो परिपूर्ण सेशन आमर चलची तो एथरे आमर आज आम देखा द रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया एंड आपको आम खाली रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया बोली भावनी जो टॉपिकटा आज रहिबो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रहिबो मु एथि पई कहबी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रहिबो बिकॉज दिस वन इज ओनली के रिवर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया तो मु कहबिनी ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रही बिकॉज जेतरे मु कहे ना कि रिवर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया दैट मीन्स आम गोटे गोटे रिवर को डिस्कस करने को आसीनी मु आई वुड नॉट डिस्कस गुड इवनिंग एवरीवन तो ये गोटे गोटे रिवर को आम डिस्प्यूट देखबानी बट बेटर आम देखा कि जो मेन्स आंसर राइटिंग आगु को जो तुम रहिबो बा आगो को जो मेन्स एग्जाम अच्छी से केमिति प्रेजेंट करवा व्हाट आर द पर्सपेक्टिव जो डेवलप करबे ना सब देख जो मन किसी पिला जियोग्राफी ऑप्शनल भी थी और जो मन जियोग्राफी ऑप्शनल रही से केमती पर्सपेक्टिव को ऐड कर सब गोटे देख दीटा पॉइंट रू पढ़ेबी गोटे तो मुझे जीएस पॉइंट रू कहबी कि देख ये सब आंसर हो पार एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी वैल्यूएटेड कर देबी जोटा कि ऑप्शनल पॉइंट रू हो तो बोथ रू आम से देखी पार राइट गुड इवनिंग सुरेंद्र सस्मिता सनु एंड अदर्स एज वेल तो ये जो रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया रही प्रथम तो आम देखा कजेस कौन अच्छी देन तार सॉल्यूशन कौन रही को रिवर डिस्प्यूटेड अच्छी देन व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क कौन रही सेंटर रोल कौन रही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन रही एंड व्हाट आर द थॉट्स एंड द पर्सपेक्टिव्स सो दिस वुड बी तो जो रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया आज आम पढ़ा ताको डिफरेंट एरिया रे डिवाइड कर फास्ट मुझे कजेस कौन देन आम देखा सॉल्यूशन कौन सॉल्यूशन रे लीगल फ्रेमवर्क कौन रही सेंट्रल गवर्नमेंट रोल कौन रही ट्राइब्यूनल्स वगैरह जहाँ अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स टू आरंभ कर डिस्कस करवा देन वी विल कम्स टू आम देखा कौन व्हाट वुड बी द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कौन रही इंटरनेशनल लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन देखा जाउछि देन वी विल कम्स टू द थॉट्स पार्ट रिवर डिस्प्यूट को लेकिन थॉट्स कौन रही चलो फिर देखा so now we will first go through what the river disputes of India. The river disputes of India, these are the certain rivers that here you can see in the map that these are the rivers are the disputed rivers. Like I will start from Odisha's what the Odisha PCS is very close. So those who are right, good evening Anita as well. So Kunal Pratap Singh is saying कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहे आ जाएगा कोई नहीं right. So right now these are the river here you can say the Siak river, Lohit river, Brahmaputra is disputed, Kosi is disputed, here Tista is not there, that is also disputed. When it comes to the fast you have to remember the map to what exactly the rivers and who are the rivers, where they are exactly situated, those who are the disputed one. Right, the first of all is that this is the word disputed map and this map is very important to remember everyone because right if you remember this map that will help you writing better answer for the interstate river dispute right so at least na you will be able to draw the map at least you will be able to draw the map and that will help you. So when it comes to the river disputes of India starting from Odisha when it that see in the Odisha the river dispute we talked it earlier when I went through the dispute border dispute of Odisha that time I also talked about what are the rivers like river like Mahanadi, the river like Bangsadhara. So these are the disputed river. Apart from that we also went through that Subarna Rekha. Though Subarna Rekha is not that much of disputed like the Bangsadhara and Mahanadi, but some pretty here and there chota mota disputed is there, right? Otherwise I would say good evening everyone. So that means starting from Brahmaputra like with China, this is disputed with China, Kosi with Nepal, then here would be Tista, there would be what that is Tista with Bangladesh, the Tista is disputed with Bangladesh. Then here you can see Mahanadi disputed with Chhattisgarh, Mahanadi is disputed with Chhattisgarh and Odisha, Bangsadhara is what Odisha and Andhra Pradesh, Narmada is disputed between Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. Then Luni is disputed, Chambal is disputed between Madhya Pradesh and Rajasthan, Yamuna is disputed between Punjab, Haryana, all these. So these are the disputed. Indus is disputed between India and Pakistan, right? So Krishna and Kaveri is famous disputed river, right? Kaveri everybody knows that Kaveri is the what fast river tribunal that sat in India or that was constituted in India with respect to Kaveri.
right, with respect to Kaveri. So Kaveri is also very famous, that is the disputes between, and तमने मते सुनी थो कि बैंगलोर पूरा शट डाउन हो जाए Kaveri disputes जेतले बहुत काफी हाइप हो जाए तो सेतरा बैंगलोर शट डाउन हो जिवो. That means हमके कर्नाटक and Tamil Nadu भितरे perennial dispute, it's a like a what perennial type of dispute. Then Krishna disputes, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, all this. Godavari also disputed, Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh, these are also disputed. So these are the certain rivers map I have added. These are the disputed rivers like Godavari is Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh also. Then what Vamshadhara, Odisha, Mahanadi also there. Kaveri is Karnataka. What there is famous what Karnataka and Kerala. Apart from that is Tamil Nadu. So Karnataka, Tamil Nadu. Apart from that Kerala and Puducherry. Then Periyar is disputed Tamil Nadu and Kerala. Krishna is disputed that Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. Mandovi, जोटा कि तमरो गोवा रे रही हम कहबा Mandovi, that is also Goa, Karnataka, Maharashtra. Narmada is disputed Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan. Ravi and Ravi B Satluj is disputed between Rajasthan, Punjab, Haryana. ये disputed है कि रही. So these are the disputed rivers हमें कहबा. Then why so much of disputes? काहे कि river dispute बढ़ी बढ़ी जाउची. If I say why the river dispute is increasing in India, the reason kano, what are the reason for the increasing such a huge number of river dispute dinakku dina badhuchi. So आकु जानिले कौन हबो, your prelim will be easy. ध्यान से सुनिबो, जो मानको लागु जे ना this lesson is for the mains ना, this lesson is for the prelims and mains both. कहना ये लेसन को न जानिले it would be difficult. काली सकाल जदि prelims रे question आसीबो, let's say they will ask the Narmada river is disputed between whom, then it would be difficult to point out. It would be difficult to point out because here I have pointed out Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. So it would be easy for you. This is, that does not mean हमें कहबा कि एटा केवल मेंस पिलांक पई. This would be very for the what essential for the prelims. से मैं बारंबार कहि कि those who are preparing for the mains, it would be those candidates who are preparing for the mains, they would be able to sail through the prelims. Those who are exclusively, it would be for the prelims, it would be very difficult, right? तो ये तमने समझते जानी छ ऑलरेडी. तेणु को रिवर डिस्प्यूटर्स अछि हमें ताको गोटे ओवरऑल गोटे इमेज हमें देखिदेले इमेज द्वारा कि these are the river disputed in India. What? These are the river disputed in India. So I have taken the names of these rivers, some of the river. Then we will come to the causes of dispute. Then what would be the causes of dispute? If I ask you guys, okay, what would be the causes of river dispute? Can I river disputes Periyar river? Let's say they will ask prelims re pachado kanko Periyar river disputes kar. So that means it would be Tamil Nadu and Karnataka. Kaveri, the Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. So these are the dispute prelims re madhya question hei pare. Jemte ki what Yamuna disputes UPSC pachatla mains and prelims re madhya. Tano river dispute, that does not mean it's a mains topic. No, it's a prelims plus main. There is no such kind of clear-cut division between the prelims and mains except some factual points like sports, awards, military exercises, so on and so forth. Otherwise, majority of the topics will be both in prelims and mains. That will help you in the both way. चलो फिर आज हम देखिबा. Now what would be the causes of the river dispute? See, the causes of river dispute, if I comes to the causes of river dispute, the causes of river disputes is, so before that means I would say since the what British time, since that is East India Company, the river disputes of India is there, and especially with respect to the Kaveri river dispute. Then what are the reason Kaveri disputes kahi river disputes? Because of the historical factors. Then if I say historical factor is one reason, what would be other reason? Climate change. What would be other reason? Reorganization of the state. What would be other reason? Political motivated. What would be other reason? Because of growth and development. What would be other reason? Growth of population. What would be other reason? Boost of agriculture and the industrialization. This would be the what causes. So if I comes to the causes, there could be number of causes will comes, starting from the growth of population to industrialization to agriculture, green revolution, agriculture, boom of agriculture, growth of cities and the urban space and required of river. Also, that means what water is also growing. The cities like Bengaluru, Hyderabad, these cities require so much of water for the running of their daily lives, and that is why so Karnataka also do hesitate to transfer the water to the Tamil Nadu in the what Kaveri, and that leads to the what especially the disputes in that particular region, right? And so
what would be happens, what could be the rivers or river disputes map we have gone through the river dispute, then what would be the causes? I mentioned that the geographical inequality. When I say the geographical inequality, these are the words that you need to remember. Geographical inequality, that means uneven distribution of water. Some states, the states like UP, the states like Bihar, West Bengal, Odisha, they are having pretty good amount of water, Andhra Pradesh, right? But states like Karnataka, Tamil Nadu, they are having less water. They are having less water, right? So geographical uneven distribution of the river and the water resource across the India, सेथिरे आमे कहबा देखिया को मिलिबो. Then river origin from one state and flow out गोटे state जाई किजिबो. That is also another reason. The geographical factor is that inequality in the water resource distribute, and the Goti river, let's say Godavari, origin from Maharashtra and passes all the way that it would be what Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, then falls to the what I would say Bay of Bengal. So as the river passes through so many of what I would say states, that will definitely lead to the confrontation and the conflict gote hawar chances thai. Good evening Sagar and Vidut. So that is why reason आमे कहबा काहे कि वे. For example Kaveri, Krishna दिया है. For example Ganga, let's say आमे कहबा Indus कथा नहीं जाओ. Indus is coming all the way from what आमे कहबा China, Tibet, then India, then Pakistan. Obviously there would be opportunity to have the dispute. Let's say I will comes to the Nile river. That is why the river passes through so many countries and is being disputed. Nile river also disputed. Danube river in Europe. तो जेतेटा country देखि pass करो सेते dispute हमारा chances है. Like in India, if a river passes through so many states, there is opportunity to have the more dispute. So that this is the first point of causes. Now overall it would be geographical, socio-economic and environmental factor that leads to the growth and the what river dispute. So overall जदि हमें कहबा geographical, then what would be agricultural dependency. जो माने कि let's say हमें कहबा जो upstream रही हम downstream. Let's say Odisha is in the downstream of Mahanadi river basin and Chhattisgarh is the upstream of the river Mahanadi. तो जदि upstream state माने किछि भी activities करूछंती चाहे से barrage किछि dams करूछ, they are upstream states. If they obstruct the water by doing what barrages and dams and they divert the water, the downstream or the low riparian state will suffer. Will what suffer? That means हमें कहबा upper riparian state and the down riparian states. The upper riparians, those who are on the upper catchment of the river, on the what upper catchment of the river when it comes to like the Chhattisgarh. If it comes to the word Odisha, it's about down riparian state, and that's what the flow of water comes all the way from the Chhattisgarh and that enters to Odisha. What that is why agriculture, high agricultural irrigational जनते हमको Chhattisgarh, in case of Chhattisgarh is one of the what the rice ball of India भी कहा जाता है. And Chhattisgarh और काफी rice यदि हम देखिए पर after the formation of the new state in 2000, then को Chhattisgarh जैसे irrigation, intensive agriculture जला, rice cultivation कला, so much of industrializations, growth of cities like Raipur, तादर कौन हला water diversion हला. That is also region. Then hydroelectricity irrigation projects जेमते हमें आंध्र प्रदेश कथा नहीं जो, छत्तीसगढ़ कथा नहीं जो, कर्नाटक मेकाडाटू प्रोजेक्ट हमें कहबा कहाँ पर ना कर्नाटक रे जदि हमें कहबा कावेरी रिवर काई डिस्प्यूटेड एक तो रहिछि शिवसमुद्रम रहिछि, देन मेकाडाटू प्रोजेक्ट रहिछि. ए सब जो प्रोजेक्ट करूछि नुवा प्रोजेक्ट जेतरे कर्नाटक पुणी स्टार्ट कला मेकाडाटू प्रोजेक्ट कावेरी ऊपर ताको ऑब्जेक्ट कला कि तमिलनाडु बिकॉज़ लो रिपारियन स्टेट तमिलनाडु को भी वाटर दरकार सेतमे से ऑब्जेक्ट कला पुणी डिस्प्यूट स्टार्ट हला. डैम कंस्ट्रक्शन, बैरेजेस, केनाल अपस्ट्रीम जहाँ भी था हीराकुद जमती महानदी हम कहबा डिस्प्यूट हबो ही हबो. अच्छा देखो खाली नाही कि अपर रिपारियन जदि डैम बैरेजेस कला डिस्प्यूट हबो लोर ना जदि मु हीराकुद डैम रो हाइट बढ़ाई देबी छत्तीसगढ़ किछि एरिया बुडी जबो ताहाले सेटा भी डिस्प्यूट हबो. एटा छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्ट करिवो. दैट मींस बोथ अपर रिपारियन एंड लो रिपारियन जगह हम जदि भी डैम्स होची बैरेजेस होची दैट मे लीड्स टू द डिस्प्यूट. फॉर एग्जांपल गोदावरी कवि पोलाभ्रम प्रोजेक्ट जेते पोलाभ्रम प्रोजेक्ट होची तार जेते हाइट बढ़ा जाउची बा पोलाभ्रम गोटे बहुत बड़ डैम्स ता मध्ये करा जाउची ता द्वारा मालकानगिरी किछि एरिया बुडी जबो, छत्तीसगढ़ रो किछि एरिया बुडी जबो, राइट. ता द्वारा छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा डिस्प्यूट हे गेला. दैट मींस छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा कंप्लेन करियो का विरुद्ध आंध्र प्रदेश विरुद्ध रे. सो दैट इज व्हाई पोलाभ्रम इज अ डिस्प्यूटेड डैम. दैट इज व्हाई हम कहबा पोलाभ्रम हे गेला तमरो डिस्प्यूटेड हे गेला. सेति पई मु कहबी ता डज नॉट मींस जदि तुमको लागो कि ओनली अपर रिपारियन स्टेट जदि डैम्स बैरेज करछु डिस्प्यूट हबो नले नै ना लो रिपारियन कले मध्य हबो. सो दैट इज द रीजन हम कहबा. देन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जदि हम कहबी दिस इज हम देखु जे कोन दिस आर द कॉजेस दैट लीड्स टू द डिस्प्यूट ऑफ रिवर डिस्प्यूट्स रो कॉजेस कोन हिता.
तो दैट वी आर गोइंग थ्रू द व्हाट कॉजेस को नहीं कि हमें जाउछे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन लाइक फॉर एग्जांपल्स हमें कहबा यमुना जेतरे पोल्यूशन एते होउची हरियाणा यूपी दे विल कंप्लेन दिल्ली जो जितने यमुना पोल्यूशन होची obviously UP will complain, Madhya Pradesh will complain, Haryana will complain, other state will complain. So pollution also another reason. That is what another reason for the disputes मध्ये ही pollution, right? सेटा मध्ये ही परिबो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पोल्यूशन जदी रिफर कल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मध्ये ही परे पॉलिटिकल मोटिवेटेड ही परे हम इंटरस्टेट राइवलरी ही परे मतलब पॉलिटिकल दीटा पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट जगह रे अछि लेट्स से ओडिशा छत्तीसगढ़ रो अछि आमे कहबा जेतरो छत्तीसगढ़ बीजेपी थिला सेतरो ओडिशा रे बीजेडी थिला था द्वारा आमे कहबा लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन मध्ये ही परे सो दैट इज वन ऑफ द आमे कहबा सेमती मध्ये तमरो देखा जाय परे डिस्प्यूट्स हबार अपॉर्चुनिटी क्लाइमेट चेंज नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आमे कहबा क्लाइमेट चेंज एंड environmental and climatic factors this is one of the apart from that आउ कोन रहिबो मु एबे लिखिबी तमरो apart from the new points को आसीबा now what would be the new points रहिबो 6 growth of population it would be 7 that means growth of population 8 point reorganization of state this is 8 right तो एटा मध्ये ही परिबो तो reorganization of states मध्ये ही पर political motivated ही पर growth of population this is also one of the factors जदी हम कहबा ता पूर्व रो एते river disputes नथिला एबे river dispute बढ़ुची reorganization of states because number of states is what increasing तो जदी हम कहबा number of states increasing ता द्वारा disputes हबो जेमति हम कहबा reorganization जेतरो हेला तब छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड ए सब जे नुवा स्टेट हेला तेलंगाना मध्य है 2013 रे त नुआ स्टेट जेते फॉर्मेशन हम से डिस्प्यूट्स मध्य पड़िबो तो रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट को हम सेठी लिखि देबा सेमति ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जेते हम कहबा दिल्ली यूपी बिहार एमन को पॉपुलेशन बढ़ुची वाटर दरकार हबो ओडिशा कथा नै जो ओडिशा पॉपुलेशन ते ग्रोथ होनी मो कहबी संभाव के पॉपुलेशन ग्रोथ जदी हबो डिमांड बढ़िबो आ जेते डिमांड बढ़िबो सेते कोन हबो कन्संट्रेशन स्टार्ट हबो ग्रोथ ऑफ देन यू मे से आउ कोन ही परिबो हम कहबा कि एटा तो सब देखबा क्लाइमेटिक फैक्टर्स now environmental climate factors that means एथरे कोन रहइबो के व्हाट हम कहबा फ्लक्चुएशन ऑफ मॉनसून that means हम जदि मॉनसून ब्रेक हे गेला लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहबा के मॉनसूनल ब्रेक हे गेला जदि मॉनसूनल ब्रेक होची बा एलिनो कंडीशन जेतरो रहउची राइट जेतर एलिनो कंडीशन देखा जाउची सेही सब केस रे मध्ये डिस्प्यूट अधिक होई थाय और जेतर रेनफॉल अधिक हबो समस्त को तो वाटर मिली जो आराम से तो दैट मे नॉट लीड टू द डिस्प्यूट्स बट एलिनो टाइम रे वाटर कम थिबो सेतर डिस्प्यूट हबो मॉनसून ब्रेक हेला डिस्प्यूट हबो तो दैट मींस इफ देयर वुड बी चेंजेस इन द मॉनसून एंड द रेनफॉल पैटर्न जदी चेंज हबो एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल जदी कमी जो दैट विल लीड टू द डिस्प्यूट तादर कोन हबो डिस्प्यूट हबो सो दीस आर द कॉजेस जदी हम कहबा राइट ये रहबो तमरो कॉजेस ऑफ डिस्प्यूट्स को हमें देखि देले जोटा की नाउ एबे जति हमें कॉजेस को आसिले ताले सॉल्यूशन को आसीबा किंतु ता पूर्व मुटिके थॉट्स जो मन के ज्योग्राफी ऑप्शनल थिबो तांकर थॉट्स मुटिके ऐड कर देबा हला थॉट्स टिके ऐड कर देबा कि रिवर डिस्प्यूट काहे होउची जो मन के ऑप्शनल थिबो तल जेतर तमे रिवर डिस्प्यूट लिखो जे ज्योग्राफी ऑप्शनल रे खाली कोन सेति पॉइंट लिखले मार्क मिलिबो कि ना यू हैव टू ऐड फ्रॉम द थॉट्स पॉइंट को किछ ऐड करे पड़ो जेम कहबा एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म जाको हम कोन कहबा एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म जदी मो थॉट्स रे कहबी जो माने ह्यूमन ज्योग्राफी पढिथिबो कि environmental determinism also that means environments is deciding whether there would be dispute or not तुमको सर केमिति एठी जदी मु लिखिबी थॉट्स पार्ट रु जदी मु आ गोटे कॉजेस एठी लिखिबी environmental determinism I means थॉट्स जदी मु ह्यूमन ज्योग्राफी रु आनी की गोटे पॉइंट्स एठी ऐड करबी कि environmental determinism तुमको सर एटा किछि बुझा पड़लानी environmental determinism this is all अर्थात कोन environmental determinism that means आ द्वारा dispute होउची आ द्वारा कोन होउची disputes होउची तुमको सर केमिति because environment जदी रेनफॉल कमुची रेनफॉल पैटर्न चेंज होउची एलिनो होउची हम कहला ता द्वारा dispute होउची that means responsible की environment and the man and environment relation रे जदी कहबा the man's action is been influenced by environment by what environment that means whether there would be dispute between Odisha or Chhattisgarh
it would be decided by the environment. तमे सर कहबो केमती जदि बहुत सारा जस्ट इमेजिन करो ओडिसा रेन छत्तीसगढ़ रे काफी ज्यादा रेनफॉल हबो ताले से वाटर ने की कोन करो से छाड़ दो ताले ओडिसा को काफी वाटर मिली जबो दैट मीन्स जदि एनवायरनमेंट डिटरमाइन करूची बा हमें कहबा एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म वन ऑफ द फैक्टर फॉर द डिस्प्यूट्स ऑफ द रिवर इज इट करेक्ट ऑल एटा मध्ये तुम मन को जाना पड़ जबो कि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म हाउ अपार्ट फ्रॉम जदि तमे कहबो सर लिमिट्स टू ग्रोथ आ गुटे कोन रहबो लिमिट्स टू ग्रोथ जो माने थॉट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल पिला जदि के थिबो तो जदि हमें कहबा लिमिट्स टू ग्रोथ को मध्ये तमे एठी ऐड करि परिबो व्हाट लिमिट्स टू ग्रोथ तुम कहबो सर कोन सब जिनसर गोटे लिमिट्स थाए जेतले लिमिट्स टू ग्रोथ हमें पढुथले कोन लिमिट्स टू ग्रोथ रे कोन थाए मॉडल्स थाए आगे नहीं त लिमिट्स टू ग्रोथ कोन कुए कि सब जिनसर गोटे साइकिल थाए कोन थाए साइकिल थाए and that is one of the reason हम कहबा limits to growth रे कहितले कि there would be scarcity of resource कोन कहितले scarcity of resource जेतले क्लब ऑफ रोम जेतले रिपोर्ट पब्लिश करथले त एमआईटी रे जेतले रिसर्च हैला सेतले जेतले क्लब ऑफ रोम देले limits to growth and that is growth beyond the limit तापर सेकंड रिपोर्ट दबो but growth beyond the limits तो limits to growth जेतले 1972 रे तमरो देले then 20 years पर दबो beyond the limits कोन हबो सेतले कहितले कि there would be scarcity of resource तो scarcity of resource हमें कहबो one of the factors ताको मध्ये तमे जदि तमे चाहिबो थॉट्स पार्ट मध्ये you can add then what would be other thoughts तालेबु natural outcomes geographical development लेटा गोटे थॉट्स लिखली कि these are the what natural outcomes and developments हमें देखु जेमते इंडिया रिवर्स क्रॉस मल्टीपल स्टेट जेते हम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिमांड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब डिस्कस करी देन नेक्स्ट थॉट को जदि मु कहबी रिफ्लेक्शन ऑफ फेडरल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स रिफ्लेक्शन दिस इज द थॉट्स पार्ट को मु कहछि कि तमरो जोटा कि कहते ना कि टिके हायर वर्जन जेता हम रिवर डिस्प्यूट लिखुचे हायर वर्जन रे कोन दिस आर द जोटा आगु कहछि तो कॉमन पॉइंट समस्त लिखि पारो कि दिस आर द कॉमन पॉइंट्स नो अपार्ट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट्स वी हैव टू राइट आल्सो थॉट्स पार्ट now thoughts reflection of federal and political dynamics I means interstate river जो rivalry is a political what opportunism हां कि नहीं जेते बेले भाबो ओडिसा रे बीजेडी थिला ओडिसा छत्तीसगढ़ बीजेपी थिला ये कोन थिला दैट इज इंटरेस्टेड राइवलरी एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हम कहबा एलोकेशन डिसएग्रीमेंट सभा समटाइम्स एम्प्लीफाइड ड्यूरिंग द इलेक्शन हे गेला ये सब का जब देखा कावेरी कृष्णा डिस्प्यूट्स कथा नहीं जाओ आगे नहीं so that means हम कहबा रिफ्लेक्शन ऑफ फेडरल्स हम कहबा जदी ए फेडरल पॉलिसी जोकु मध्य होची सेमती लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस मध्य रहिछि लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस रहिछि जेमती हम कहबा रिवर डिस्प्यूट एक्ट रहिछि ट्राइब्यूनल्स रहिछि बोर्ड रहिछि दे आर ऑफन स्लो रिएक्टिव्स पोरली इंप्लीमेंटेड ये देखो जदी एको जदी हमें काफी बहुत फास्ट एंड क्विक इंप्लीमेंट करथांते ना शायद आज रिवर डिस्प्यूट एते ही न थांता इन इंडिया दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ओके so lack of enforceable compliance and coordination एटा मध्ये हमको देखा जाओ and coordination एटा मध्ये देखा जाओ now ये मध्ये that means हम कहबा कना तमे जानछो कि जेते हम ट्राइब्यूनल्स अछि ते ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया डज नॉट हैव एनी what mandate of time तांकु समति किछि mandate of time दिए जाइनी कि एति कि दिन भीतर तमे तमरो सुनानी कर दो केस को खत्म करो सेमति किछ नै चलीची लेंथनिंग ऑफ प्रोसेस लिंजरिंग ऑफ द प्रोसेस लेंथनिंग टाइम खिचुची तादर अधिक मतलब लोक सफर हो ना तादर सफर की हो लोक हो राइट द पीपल्स विल बी सफर देन एटा को हम एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंसर्न्स हम देखिबा कोन क्लाइमेट चेंज जो हम ऑलरेडी डिस्कस करछे कि क्लाइमेट चेंज इराटिक रेनफॉल ग्लेशियल रिट्रीट फ्लड वाटर स्कार्सिटी ये सब देखा जिवो अपस्ट्रीम रे जदि डैम्स हैला तो अपस्ट्रीम डैम्स एंड ओवर यूज जोटा कि हम कहबा डिस्टेबलाइज द डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम को मतलब डिस्टेबलाइज करबो सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स हम कहबा नीड फॉर कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस हम कहबा नीड फॉर व्हाट कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस एटा मध्ये हमको दरकार गोटे कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस हमको दरकार दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट ओके देन अच्छा ताले हम कहले क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल नीड फॉर कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस एई गुडा तुमको लिखिया पड़िबो यू हैव टू जेते बेले तमे रिवर डिस्प्यूट लिखुछ ना एई भले वर्ड जदी तमे यूज करूछ दीज आर नॉट जनरल टर्म्स तो समस्त तो सेही लिखिबो के जोटा हमें प्रथम रो डिस्कस है रेनफॉल कमिकल अटैक तो दीज आर द वर्ड्स दैट में ये जदी तमे आंसर लिखुछ ताले तुमको टिके हटके लागिवो एग्जामिनर को देखिवो सपोज भाबो एग्जामिनर एई पॉइंट गुडा पढी जाई छन कॉजेस रे एई पॉइंट गुडा समस्त एई गुडा लिखिथिबे
किंतु जेतो गोटे खाता रे एमती थिबो थॉट्स थिबो द थॉट्स ऑन द रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया एमती थिबो हेडलाइन ये थिबो ना दैट विल बी यूनिक तो सेटा कोन हिजो यूनिक हिजो तो एग्जामिनर को लागिवो कि यार ये कोन गोटे डिफरेंट एंगल रु लिखिछि सो दैट विल कैच his or her eyes and he or she will spend more time on your paper, then that will gives you more mark. That will gives you what? More mark. And that is why the सबले thoughts part को you और जो मन करता geography optional होची they must write this one. सेमन को तो must लिखिया पड़िबो और जो मन के geography optional if you are writing this point ना so ये GS भले आंसर रही जो ये कौन है जो GS भले आंसर रही जो एग्जामिनर को लगियो कि this guys does not have any thoughts background कि जे thoughts और background ही नहीं so this is how the you have to write the thoughts on the river disputes of India right तो तुम मन को पूरा YouTube पर जदि हम स्टडी क्यू प्लेटफॉर्म रे बढ़िया कंटेंट दिया होची मु कहबे मेंस जो मन को तैयारी होची बागु को जो माने प्रीलिम्स देबे नेक्स्ट से मन को पई मध्ये काफी हेल्पफुल रहबो ये सारा लेक्चर जेते रहबो तो आप तुम मन को कंटेंट्स मध्ये मिली जबो वेस्ट मेंटर टेलीग्राम चैनल जोटा मोर रहिची ताको फॉलो करतबो तुम मन को कंटेंट मिली जबो जाबियो तो ये नेचुरल कॉजेस हम देखले लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस मध्ये बाप चैलेंजेस रहिची राइट हाँ सो दैट वुड बी देयर तो जोटा हमें कहबा दैट इज एग्जिस्टिंग ऑफ मैकेनिज्म लाइक रिवर डिस्प्यूट एक्ट ट्राइब्यूनल्स रिवर बोर्ड्स ये सब हमें कहबा तो ताको हमें मध्ये डिस्कस देन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक डिस्कस कले देन नीड फॉर द कोऑपरेटिव गवर्नेंस एटा तुम वे फॉरवर्ड रे भी लिखि पारिबो एटा को तुम ना ए जो डिस्प्यूट्स कैन बी मिटिगेटेड थ्रू द इंटरेस्टेड कोऑपरेशन रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग अर्थात जेतरे में कोनोसी रिवर प्लानिंग करूछ ना महानदी रो प्लानिंग करूची ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिसिकी सॉरी ओडिशा मिसिकी प्लान करिवो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल तेनो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाटर गवर्नेंस ताको हम कोन कहबा वाटर गवर्नेंस ए भले वर्ड जो रहिछ ना की वर्ड को तुमको लिखा कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस राइट देन तुम कहबा वाटर फेडरलिज्म देयर मस्ट बी फेडरलिज्म इन वाटर आ गोटे मु टर्म्स बाहर कली कि फेडरलिज्म इन वाटर तो वाटर रे फेडरलिज्म दरकार वाटर सिक्योरिटी व्हाट वाटर सिक्योरिटी वाटर फेडरलिज्म वाटर गवर्नेंस हां के नहीं तो ये जो की वर्ड सब रही यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन योर आंसर राइट यू हैव टू इनर आंसर तुमको लिखे पड़े तो ये कौन देखा द मॉडर्न सॉल्यूशंस हमें कहवा दैट मींस इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हमें कहि परिबा डाटा शेयरिंग कर परिबा वाटर ट्रीटीज कर परिबा डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मेकानिज्म कर परिबा इथिकल डायनामा कोन इथिकल डायलेमा मध्ये रही देखो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट जो माने इथिक्स रे लिखिबो रिवर डिस्प्यूट को इन दैट मींस व्हाट इक्विटेबल हवा दरकार सस्टेनेबल हवा दरकार ट्रांसपेरेंट हवा दरकार नले असुविधा लेट्स से काहे कि आज डिस्प्यूट होउची प्रॉब्लम काहे कि होउची इथिकल डायलेमा काहे कि होउची हमें कहबे कावेरी रिवर त माने भाबो कावेरी रिवर बिफोर द इंडिपेंडेंस सेबेठू आजी जाई अछि माने जेतले ब्रिटिशर्स माने थिले सेबेठू 19 सेंचुरी कहले 1800 रु 1860 ना केबे मोर सेति कि एते मन पडुनी बैकग्राउंड लगभग 1860 बा 1870 हमें कहबा सेबेठू डिस्प्यूट हेकी रहिछि कावेरी डिस्प्यूट एते पुराना डिस्प्यूट काहे कि बिकॉज ऑफ दिस ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हेई पारु नाही इथिकल जस्टिस बा इथिक्स पूरा जो इक्विटेबल शेयरिंग हेई पारु नाही अर्थात कर्नाटक कहबा कथा लेट्स से ओइटा हेई भी पारिबो नाही एटा कोन हेई भी पारिबो नाही तुमको सर केमिति भाव रिवर डिस्प्यूट हैला महानदी एंड मु गोटे एग्जांपल दोछि महानदी एंड छत्तीसगढ़ भितर रिवर डिस्प्यूट हैला तो ट्राइब्यूनल बसिला ट्राइब्यूनल कहला कि ठीक अछि छत्तीसगढ़ हैला वर्षा दिन रे ओडिशा को प्रत्येक दिन एतिकी क्यूसेक रो वाटर छाड़िबो कहि देला आ खरा दिन रे एतिकी वाटर छाड़िबो कना खरा दिन पानी नथिबो कहि देला ट्राइब्यूनल तर खत्म किंतु भाव 2026 टार्गेट अछि कोन ट्राइब्यूनल एबे तो जो ट्राइब्यूनल अछि हमर महानदी ट्राइब्यूनल से तर फाइनल वर्डिक्ट देबो 2026 रे 26 रे वर्डिक्ट देई देला 2027 रे कोन हैला ना एलिनो ईयर हे गेला छत्तीसगढ़ कहबो कि आपण जो मते कहितले जेति कि पानी छाडिया कथा मो पाखरे वर्षा हेले सिना मु पानी छाडीबी मु छाडीबिनी सेही कथा कहूची वर्तमान कर्नाटक कहूची कि ठीक अछि मते जो कहितले जेति कि पानी छाडिया कथा तमिलनाडु को मु छाडीबी हेले सेति कि वर्षा हेले सिना यदि वर्षा कमी गला मु कोन करिबी आपण कहितंती मते दिन को सपोज एति कि क्यूसेक लेट से 1000 क्यूसेक रो वाटर छाडीबो किंतु ताले सेटा को बेसिस रे हमें कहूचे सेटा रेनफॉल बेसिस रे कहूचे
कि हाँ ठीक अच्छी जदि कर्णाटक रे 100 सेंटीमीटर एमती हवा दरकार जदि जो वर्ष 100 सेंटीमीटर कर्णाटक रेनफॉल रिसीव कला एतिकी क्यूसेक छाड़िबो जदि 200 हैला एतिकी छाड़िबो सेमिति न है कि जदि आमे खाली कहि देबो एमिति केना कर्णाटक एतिकी छाड़िबो से कहबार भाई वर्षा तो हेदी मु कहीं पानी छाड़बी मु सोडू कोन हैरान हेबी ना कोन पानी छाड़ देकी जेति तमे कहछ से छाड़िबोनी तापर तमिलनाडु जाई पहुंचबो कोठी सुप्रीम कोर्ट रे पुनी आउथरे केस फाइल हबो आउथरे ट्राइब्यूनल बसिबो एथि पई एमिति हे कि कोन होची ना एवरग्रीनिंग ऑफ रिवर डिस्प्यूट एवरग्रीनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल से सॉल्यूशन र किछि खत्म हे पारु नाही बा सॉल्यूशन किछि बाहरी पारु नाही एबे बुझि पालो काहे कि डिस्प्यूट होची कावेरी डिस्प्यूट एथि पई जोटा मु कहली तुमको बुझाइली दैट इज द चैलेंज सो राइट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू रो केमति लिखिबो स्ट्रक्चर लिखिबो केसेस रिफ्लेक्शन ऑफ फेडरलिज्म जोटा मु कहली लेगल कोन अछि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस कोन अछि एनवायरमेंटल डायमेंशन को लिखिबो सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड तुमको लिखिबो एग्जांपल तमे देई परिबो जो कावेरी महानदी कृष्णा कावेरी इसु जहा डिस्प्यूटेड रही सब बोली इथिकल्स एंगल रु मध्ये हमको देखिया को पड़िबो तो ये थिला थॉट्स ऑन द रिवर डिस्प्यूट्स द रिवर डिस्प्यूट सला ए सला कोन डिस्प्यूट तापर सॉल्यूशन को आसीबा जदि थॉट्स आमे कहबा दैट मींस जदि हमरो डिस्प्यूट सरला ताले सॉल्यूशन को जिबा डिस्प्यूट आही गेला देन सॉल्यूशन कोन हे परिबो ना सॉल्यूशन रे फास्ट लिखा है देखा एमिति ही लिखिबो जेमति हेडलाइन दिया है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म ताको अंडरलाइन कर दबो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म कोन अछि फॉर द रिवर डिस्प्यूट रो सॉल्यूशन पई दैट मींस हम कहबा जेतरा सॉल्यूशन को जाउचे फास्ट हम देखुचे लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म व्हेन इज अ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म जेतरा मु कहे राइट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म तो सेथरे लीगल रे कोन अछि दैट मींस हम कहबा 1956 तो 1956 जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट होइछि दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क सेटा होछि कोन लीगल फ्रेमवर्क दैट इज व्हाट लीगल फ्रेमवर्क हम कहबा तो सेटा सही अनुसार तमे कहि परबो कि दैट मींस द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व थ्रू द डिस्प्यूट एक्ट इंटेस्टेड वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 सही परबो सेथरे कोन हबो तुम ट्राइब्यूनल हबो दैट विल हैव व्हाट ट्राइब्यूनल यारी प्रोविजन अंडर त हबो ट्राइब्यूनल ना सुप्रीम कोर्ट रही इंटरवेंशन करि परिबो फॉर द कंप्लेंट्स एंड रिजल्व डेडलॉक रिवर बर्ड अथॉरिटी मैनेजमेंट बोर्ड करि परिबो जेंति कावेरी मैनेजमेंट हेची तो एठू मु उठे की पॉइंट महानदी रे लिखि देबी ताले महानदी डिस्प्यूट सॉल्यूशन रे मु लिखि देबी जेंति कावेरी रिवर बोर्ड मैनेजमेंट रहिची बा कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड रहिची कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड रहिची जेंति महानदी पई भी करा जाऊ सेमति महानदी पई भी करा जाऊ ताकि डिस्प्यूट कमिबो देखो सेथि पई ना तुमको यू हैव टू लर्न दैट यूजिंग द पॉइंट फ्रॉम ए एठू नै कि आउ गोटे रे केमति हम यूज करबा सेटा मेंस रो कंटेंट ठीक अछि नाउ इंटरस्टेट जेतरा में कोऑपरेशन एंड नेगोशिएशन कथा कहूचे दैट प्रमोट्स व्हाट द डायलॉग्स दैट मींस हमके डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन डिस्प्यूट्स जेते रहिबा दरकार टू मतलब व्हाट एस्केलेट्स हम जो कहूचे बिफोर द एस्केलेट ता पूर्वरु डायलॉग हवा दरकार ता पूर्वरु प्रॉपर मेकानिज्म रहिबा दरकार के एस्केलेट न हो लोकों को पाखरे कथा नै कि पहुंचू मूव न हो मूव मतलब मूव जदि एक्टिव हे जो सेटा असुविधा हबो जॉइंट प्लानिंग एंड वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट सब हवा दरकार आ सबले मेडिएशन कहार रहिबा दरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहार सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिएशन रहिबा दरकार अदरवाइज जुडिशियल गोटे बैकिंग कर दियो जुडिशियल बैकिंग जदि हम कर दवा लोकन ट्रस्ट मध्ये आसीबो सेटा मध्ये हम कहि परिबो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मध्ये तुम करबा जेमते कि एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक तमर आजकल ऐसे गेल कि प्रिसिशन फार्मिंग आजकल चलछि सो प्रिसिशन फार्मिंग को तुम यूज कर परिबो यू कैन यूज द प्रिसिशन फार्मिंग टेक्निक्स ड्रिफ्ट इरिगेशन स्प्रिंकिंग इरिगेशन जेते अछि तमरा रिड्यूस द हमें कहबा वेस्टेज वगैरह ई सब को कर परिबा वाटर स्टोरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब मध्ये कर परिबा राइट जोटा हमें कहि पर दैट मींस हमें कहबा तमे बाकी क्रॉप पैटर्न को चेंज करि परिबो क्रॉप सिलेक्शन को कहि परिबो एजुकेटिंग द फार्मर्स कहि परिबो जेते गवर्नमेंट स्कीम अछि ताको कहि परिबा परंपरागत कृषि योजना स्प्रिंकल्स हला ग्राउंड मतलब ग्राउंड अछि ड्रिफ्टिंग इरिगेशन अछि एते सब रहि छै हम क्रॉप सिलेक्शन करबा अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया से बेसिस रे हम करबा तो दिस थिंग्स आर नेसेसरी जदि हम कहबा करेक्ट बुझा पडु छै तमन को राइट देन मॉनिटर करबा केते फ्लो होची केते रिजर्वयर्स अछि यूजेस ट्रैकिंग करबा ताको GIS टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मध्ये तुम यूज करि परिबो GIS एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हम दीटा को यूज करि परिबा अगने सेटा को हम दीटा को मध्ये यूज करि परिबा के GIS टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हम ताको यूज करि परिबा राइट ताको मध्ये हम यूज करि परिबा देन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट कंसीडरेशन मध्ये
दैट इज आल्सो आमे देखुचे कोन सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन रे फास्ट हम देखले लीगल फ्रेमवर्क कोन अछि देन इंटरस्टेट कोऑपरेशन ही परिबो नेगोशिएशन ही परिबो देन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आमे देखले के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ही परिबो देन आमे देखले कोन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट कंसीडरेशन सेटा में गोटे गोटे पार्ट आमे कहि परिबा सॉल्यूशन जेतला आमे डिस्कस करूचे राइट तो एथरे कोन जेमति कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट आमे करबा तार इकोलॉजी तार ह्यूमन नीड डेवलपमेंटल ये जहाँ रहा ताको मध्ये हम डिस्कस करी दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट राइट देन आफ्रेस्टेशन वाटरशेड मैनेजमेंट ये जो रहा दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट आफ्रेस्टेशन भी हवा दरकार वाटरशेड मैनेजमेंट हवा दरकार अपस्ट्रीम रे कंजर्वेशन हवा दरकार राइट जुडिशियस यूज ऑफ वाटर हवा दरकार वाटर को लेकिन पॉलिटिक्स न करवा दरकार बिकॉज वाटर इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरीवन चाहे से गछटे हो एनिमल्स हो ह्यूमन हो समस्त सो वाटर को लेकिन तो पॉलिटिक्स बिल्कुल करिया कथा ना बिकॉज दैट इज द वाटर इक्वल टू लाइफ राइट वाटर इक्वल टू लाइफ जदि हम कहबा so that is why you can also write this kind of thought कि water should not have politics water must be ethical and it should be judicious use हवा दरकार ethical and judicial use हवा दरकार तो ethics कौन हुए that means ethics कौन हुए गोटे थाए natural justice and it should be based on the distribution of water should be based on natural justice when I say natural justice means what you have to listen both the parties you have to listen both the parties को listen करिया रही then according to the what हमें कहबा that basis of what जो pros and cons है सब को देखी कि what condition को देखी कि then we will take the decision it should be that means हमें जो ट्राइब्यूनल बसुची तमरो जेतरो कौन सी जगह वाटर डिस्प्यूट होची द ट्राइब्यूनल जेतरो जजमेंट दोची दैट जजमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस अर्थात लेट्स से महानदी ऊपर ट्राइब्यूनल बसिची तले महानदी दैट मींस ओडिसा कथा जदी न सुनिबो ट्राइब्यूनल तो जस्टिस केमती हबो बोथ द पार्टीज को आपण ठीक से सुनियार अछि प्लस एविडेंसेस गुडा टैंपरिंग न होबा दरकार लेट्स से गोटे जगह नेचुरल जस्टिस रो मीनिंग मु सिंपल कहूची बाबू गोटे केस हेची राइट गोटे मर्डर केस हेची किंतु जदि पुलिस से केस को टैंपरिंग कर देची ताले जे दोषी से तो दंड पाइबो नाही ताले एटा नेचुरल जस्टिस हेलानी दिस इज नॉट द नेचुरल जस्टिस सेमिति जेतला हम कहूचे वाटर हम कहूचे कि नेचुरल जस्टिस दैट मींस यू हैव टू लिसन बोथ द पार्टीज देन यू हैव टू गिव द जजमेंट सो इट शुड बी नेचुरल जस्टिस इट शुड बी जुडिशियस बुझा पड़िबो बे तुमन को करेक्ट तो आम देन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंसीडरेशन रे कहले कि इंटीग्रेशन ऑफ रिवर जोटे कि बेसिन मैनेजमेंट हिजबो इकोलॉजी ह्यूमन्स डेवलपमेंट आफ्रेस्टेशन ए सब मध्य हम करि परिबा देन वी आर हैविंग के हमें कहबा कि वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स गुडा रही एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रू कहि परिबो वी कैन रिड्यूस द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स वी कैन मूव टुवर्ड्स द वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स so that will require less water as compared to the water intensive crops then policy and governance reform that is also another area policy and governance reform the transparent data sharing that is what transparent data sharing among the states on the river flow rainfall reservoir levels etc it should be transparent जोटा मु तुमको आउटी पूर्व कहतली कि natural justice एबे छत्तीसगढ़ केते वाटर रखिची जदि से एविडेंस ओडिसा को न दबो बा ट्राइब्यूनल रे जदि सेटा पेश न हबो देन हाउ द जजमेंट विल बी सो दैट इज व्हाई इट शुड बी ट्रांसपेरेंट कि केते वाटर आसुची केते छत्तीसगढ़ रखुची केते ओडिसा पाउची ओडिसा रे केते शॉर्टेज होची आगुरु केते पाउथला छत्तीसगढ़ रे दरकार केते एग्जैक्टली केते रखुची सो सब को नै की कैलकुलेशन हवा दरकार इट शुड बी ए डिटेल कैलकुलेशन हवा correct right so that we will evolve everything would be आउ जदि तुमको लागुची भाई नै ठीक अछि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी छत्तीसगढ़ इज नॉट शेयरिंग सर्टेन डेटास को शेयर करोनी ताल तो दैट वुड बी अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस देयर वुड बी नो फेयरनेस देयर वुड बी नो इक्वालिटी तो सेटा हम कहबे इथिकल एंगल रु जदि हम देखबा दैट वुड बी इथिकल पॉइंट जो पॉइंट गुडा कहली कि फेयरनेस it would be not judicious these are the ethical point तो वाटर को नहीं कि हमें इथिक्स रे मध्ये लिखि परिबा that means water dispute को इथिक्स रे मध्ये पचारि परे water ethics जा को हम कहबा we will say what water ethics जेंति war ethics कहउछ तमे environmental ethics कहउछ bio ethics कहउछ हम तो this is how कि water ethics I may say कि water ethics right that will be there सेमति हम कहबा public participation also very important different stakeholder
I would say rather saying public participation, I would say what different stakeholder. Suppose महानदी जो पटे जाउची ओडिशा गवर्नमेंट गोटे स्टेक होल्डर, फार्मर गोटे स्टेक होल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट माने गोटे स्टेक होल्डर, फिशरमैन कम्युनिटी से गोटे स्टेक होल्डर अछि. तो नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर एंड यू हैव टू लिसन एवरी स्टेक होल्डर्स ऑफ द रिवर. समस्त को आउ गोटे स्टेक होल्डर अछि जहा को आमे केबे भाबोना से के एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट निजे गोटे स्टेक होल्डर सेतर माछो कोन बंचिबार तार राइट नहीं कि बा रिवर इकोलॉजी कईचटिया कुंभीरटे से बंचार राइट निस्की जब आम वाटर को रखीदेवा तो से तो मरजे. सो दैट मीन्स द नेचर मस्ट बी अनदर स्टेक होल्डर हवा दरकार मो मतरे. ताले स्टेक होल्डर किए फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फार्मर्स ये समस्त को स्टेक होल्डर निया. देन वी विल ये समस्त को नेला पर एनजीओ वगैरह डिसीजन मेकिंग रे हब तापरे हमें डिसीजन नवा कि ओडिशा एतिकी पानी पाइबो, छत्तीसगढ़ एतिकी पाइबो. करेक्ट राइट. So that is why the जेतले river dispute को हमें solution को नहीं बा एमती that would be the solution. Same the international cooperation for the transparency of the rivers like Indus Water Treaty, like the Brahmaputra, that means कहबा हमें गंगा and Brahmaputra the agreements with Bangladesh and China. So there is a transparency, the strengthen. ये कौन करे transparency will lead to the strengthening of relationship. So like हमें कहबा Indus Water Treaty with Pakistan and India भीतर बहुत सारा टसल अछि. बट वन कोऑपरेशन हमको देखिए इंडस वाटर ट्रीटी राइट. ब्रह्मपुत्र को देखिए सेंती जॉइंट कमिशन एंड द एक्सपर्ट लेवल मेकानिज्म टू मैनेज द फ्लोड डैम्स एंड डाइवर्जन ऑफ वाटर सेटा मध्ये रहिबा दरकार. सो दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशंस मध्ये हम ताको कहि परबा. इंटरनेशनल इथिक्स को मध्ये हम फॉलो करि परबा, फ्रेमवर्क्स को मध्ये हम फॉलो करि परबा. करेक्ट बुझा पड़िबो. नाउ लीगल फीचर्स कोन होछि फॉर द रिवर डिस्प्यूट्स. लीगल फीचर कोन रहिछि, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हमें एसबा लीगल फ्रेमवर्क देखिते फीचर आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रही तुम कांट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल्स जहाँ कहे सेटा फाइनल्स एंड दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द बोथ द पार्टीज. तुमको साथ सुप्रीम कोर्ट को केमती जाउछन्ती माने मते कहीं जने रिप्लाई दियो कि जदि आर्टिकल 260 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहूची कि अकॉर्डिंग टू द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो रही 1956 ते येथरे कहैछि मे बी प्रोवाइड एजुडिकेशंस ऑफ द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट जो ट्राइब्यूनल बसिबो से ट्राइब्यूनल डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग प्लस दिस इज कांट बी चैलेंज इन एनी अदर कोर्ट्स. ताहाले सुप्रीम कोर्ट को केमती जाउछन्ती माने ह केमती जाउछन्ती सु केमती जाउछन्ती एनीवन देखिबा कि कहि परुछ सुप्रीम कोर्ट को केमती जाउछन्ती एनफोर्समेंट पाई. सुप्रीम कोर्ट को गले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चेंज करबनी, सुप्रीम कोर्ट कहबा एनफोर्स करो. सपोज भाबो ट्राइब्यूनल बसिछि महानदी ऊपर आ छत्तीसगढ़ को कहछि तमे दिन को 100 बा 1000 क्यूसेक ऑफ वाटर छाड़िबो, से छाडुनी 900 छाड़ुची 100 रखी दउची. सही टाइम रे हमें सुप्रीम कोर्ट को जुआ तुमको से सुप्रीम कोर्ट कहि जिबा काने ट्राइब्यूनल तो वंस वर्डिक्ट देला पर खत्म से तो परमानेंट नुह. तो मु जीबी कोठी की सुप्रीम कोर्ट जीबी राइट. That is why. Then 7th schedule, union and state list. Entry 56 of the union list. Parliament can regulate the what river water in the interstate. Entry 6, 56. Entry 7 and 56 of the state and union list which irrigation water is so interstate use is under the state control. केते entry 6, entry 56 आको मध्ये तमे लिखि परिबो constitutional provisions रही एटे state मध्ये control कर परिबो. Entry केते 17 and 56 of the state and union list. एटा union list, एटा state list. एटा यूनियन स्टेट पई केते रहला हमर 17 आ 56 रहला का पई यूनियन पई इरिगेशन डेवलपमेंट एसो पई स्टेट मध्ये कंट्रोल कर परिबो. नाउ रिवर डिस्प्यूट एक्ट होछि 1956 सेटा में ऑलरेडी देखले के ता अंडर ट्राइब्यूनल्स मध्ये करिवो की करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो ट्राइब्यूनल्स. वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल करिवो जंती कृष्णा पाइ रहिछि कैबिनेट पई एसो मध्ये हम ताको मध्ये कहि परबो एटा होते रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोन लीगल फ्रेमवर्क हम देखुछि. देख मु जदी गोटे गोटे रिवर डिस्प्यूट देखिबे ना सेटा एते बेसी खास दबनी. एबे देखो कावेरी डिस्प्यूट आमे देखिबा सेटा त गोटे केस स्टडीज. कावेरी डिस्प्यूट इज ए केस स्टडीज. तो मु सेथि में गोटे गोटे रिवर डिस्प्यूट थोड़ी देखिबी. बेटर दिस वन जोटा मु आज तमन को पढाउछि दिस इज बेटर. कावेरी डिस्प्यूट दैट इज व्हाट हिस्टोरिकली आमे कहबा सेटा गोटे तार केस स्टडीज रहिछि. बट याकू तो ये तो सब रिवर डिस्प्यूट रे लिखि हबो ना. ये जो मु पढाउछि लीगल फ्रेमवर्क से गेला एथिकल कंसर्न कोन रहिछि व्हाट आर द व्हाट आमे कंसर्न्स दिस कैन बी राइट इन एनी रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया. होप तमन को बुझा पड़ुछि समस्त को बुझा पड़ुछि समस्त को.
देख पेशेंसली जदि तुम देखो देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग आ जदि खाली फैक्चुअल डेटा दरकार देन इट वुड बी लाइक बोरिंग तुमको लगे यार इथिकल कंसर्न कहउछन्ते एटा कहउछन्ते ये सब माइट बी दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिवर डिस्प्यूट बट दिस इज रिक्वायर्ड देन रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट एनफोर्स द ट्राइब्यूनल अवार्ड मु आउ टिके पूर्व कोन कहउतली एनफोर्समेंट पई कोठी की जीवो कना ट्राइब्यूनल भांगी जाईची कोठी की जीवो सुप्रीम कोर्ट को जीवो आउ टिके पूर्व जस्ट पूर्व कहउतली मु देखा एठी लिखा भी हेची the monitor compliance resolve the deadlocks example supreme court 2018 रे कावेरी वाटर शेयरिंग को नहीं की कहले करेक्ट रिवर बोर्ड एंड मैनेजमेंट आकु मध्य तुम कहबो कि जेतल तुम महानदी रिवर डिस्प्यूट कथा लिखुछ हाउ महानदी रिवर डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व तुम कहबो हमें रिवर मैनेजमेंट बोर्ड करा जाऊ रिवर बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड करा जाऊ रेगुलेशन हबो कंटीन्यूअस रेगुलेशन मॉनिटरिंग हबो इक्विटेबल शेयरिंग रहिबो दीटा जॉइंट मैनेजमेंट रहिबो जॉइंट मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ रहिबो ओडिसा रहिबो मेडिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो दैट वुड बी देयर देन प्रिंसिपल कोन रहिबो द प्रिंसिपल ऑफ recognized in legal jurisdictions equitable sharing already we discussed ethical देखो prior appropriations that means appropriations or the uses हम कहबा sustainable use of the tribunals awards are binding ये तो हमें जानी छै now role of central government कोन river dispute ए गोटे आउ गोटे एंगल ओपन हैला ना आउ गोटे देखा हमें कहबा ओपन हैला एंगल कि रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रिवर डिस्प्यूट तो क्रिटिकल हम देखो तले एटा मध्ये गोटे क्वेश्चन पचारि पारे मेंस रे कि डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रिवर डिस्प्यूट्स मैनेजमेंट केमती हबो सेंट्रल गवर्नमेंट केमती ताको सॉल्व करिवो नहीं परिबोनी हे परिबो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन जोटा हमें कहबा द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश द व्हाट इंटरेस्टेड ट्राइब्यूनल्स के करियो पार्लियामेंट करिवो फैसिलिटेटर एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर मीडिएटर एनफोर्सर ये फैसिलिटेट भी करिवो मेडिएटर मेडिएशन भी करिवो एनफोर्स भी करिवे दैट इज वाई इंपोर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल की करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो स्टेट तो करिवनी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा की खर्च करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करिवो हां के नहीं तो एथे कोन सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करिवो मेडिएशन की करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट करो जेमती बर्तन छत्तीसगढ़ ओडिसा भीतर मेडिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट करूची ए जण ए दी जण कहउछन्ते वी विल रिजॉल्व द इशू एमिकेबल डिसीजन निया जो द साइड हम कहबा जजेस मन को अपॉइंट करैबे यूजुअली इंक्लूड्स द जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स और द हाई कोर्ट्स हम कहबा ट्राइब्यूनल रो जो कंपोजिशन रे रहइबो ताले ये हम देखले कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रही छै फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स गदा मेडिएशन करिवो नेगोशिएशन करिवो जोटा मु तुमको आउटी पूर्व कहतली सेंट्रल गवर्नमेंट कोन मेडिएशन करिवो नेगोशिएशन करिवो एटा गोटे हम कहबा बा गोटे सेति में हम मध्य रखिबा तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना करेक्ट ये भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा हम कहि परिबा देन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट एटा मध्ये तुमन को कहली कि मॉनिटर करिवो से एनफोर्समेंट करिवो एबे कहैछि छत्तीसगढ़ को कहैछि लेट्स से 1000 क्यूसेक ऑफ वाटर छाडबो तो से छाडुनी तो मॉनिटर की करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट को अरे बाबू कहीं छाडना तमे वाटर से तो कथा हैतला छाडियो बोले भी कहीं पानी छाडना ओडिसा कहीं कंप्लेन करूछि छाडो पानी तो से कहबो सेते बेले थर्ड पार्टी गोटे रहला मेडिएशन करो सुप्रीम कोर्ट देखुछि एसु कथा को नै कि हम कहबा अवार्ड्स रहबो नेशनल ट्राइब्यूनल्स देन कोऑर्डिनेशंस एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग मध्ये रहिबो इंटरेस्टेड जो रिवर मैनेजमेंट होची ये सब कोऑर्डिनेशन प्लानिंग हवा दरकार हाइड्रोलॉजिकल्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज मध्ये हवा दरकार देन हम कहबा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर द ट्रांसबाउंडरी मध्ये हम कहि परबा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होची ट्रांसबाउंडरी एंगेज विथ व्हाट नेबरहुड कंट्रीज ऑन शेयर्ड ट्रीटीज एंड द फ्लड कंट्रोल को एग्जांपल एमती इंडस वाटर ट्रीटी कथा नै कहे पाकिस्तान गंगा वाटर कथा नै जो तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन मध्ये हम कराउ छै कोन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर द ट्रांसबाउंडरी रिवर मान करे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करा जाउ छै राइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कराउ छै ट्रांसबाउंडरी रिवर मान करे कोऑर्डिनेशन करा जाउ छै दैट इज इंपोर्टेंट सेटा मध्ये हम ताको कहबा इंपोर्टेंट रहि छै नाउ ट्राइब्यूनल्स ऑन रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया तल देखो केते एंगल ओपन होची रिवर डिस्प्यूट तमन को लगे खाली कॉजेस पढ़ी देलो सरी गला ना दीज आर लीगल फ्रेमवर्क कोन रहिची सुप्रीम कोर्ट्स रो काम रहिची ट्राइब्यूनल्स रो काम कोन सेंट्रल गवर्नमेंट रो काम कोन ये होची इंपोर्टेंट काम दीज आर द इंपोर्टेंट थिंग्स हैला तो सेमते लीगल बेसिस रे हम कहबा कि जे ट्राइब्यूनल्स ऑन द रिवर लीगल बेसिस रही परिबो कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जजेस रहिबो हम कहबा सेटा देखिले केमिति ताले जो एक्सपर्ट कमिटी रहिबो खाली नै कि जजेस रहिबो ना रिवर बोर्ड अथॉरिटी रहिबो
से जियोलॉजिस्ट थाए से क्लाइमेटोलॉजिस्ट थाई पारे हाइड्रोलॉजी तार इरिगेशन तार लॉ तार एडमिनिस्ट्रेटिव सब देखा पड़ो पावर एंड फंक्शंस ट्राइब्यूनल्स ऑलरेडी डिस्कस करिचे एंड दीज आर द सम एक्टिव ट्राइब्यूनल्स दीज आर द सम एक्टिव ट्राइब्यूनल्स तुमने देखि परिबो जेमति कि कावेरी ट्राइब्यूनल्स देखो से आज पर्यंत चली कृष्णा रही गोदावरी रही नर्मदा रही महानदी रही वंशधारा ये लेखिनी बहुत गुड़ावरी अच्छी स्टार्टिंग आम देखी बहुत गुड़ा तुम रिवर डिस्प्यूट सेमती रही राइट ए माने ए तो फैक्चुअल्स गुड़ा तुम रही जोटा कि प्रिलिम्स मेंस बहुत रे तुम यूज कर परिबो देन फीचर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स कोन ये जेमति कि बाइंडिंग रहइबो क्वासी जुडिशियल इन नेचर एडजुडिकेटिंग्स टाइम बाउंडेड रहिबो रिव्यूइंग मेकानिज्म रहिबो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट और एनफोर्स द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर ताको इंटरप्रेट भी करि पारे एनफोर्स भी करि पारे करेक्ट सेमिति इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कोन अछि ये गोटे आउ गोटे डायमेंशन ओपन हैला जेतेबेले रिवर डिस्प्यूट रो सॉल्यूशन लिखुछ यदि दुनिया कोठी गोटे बेस्ट प्रैक्टिसेस अछि ताकू भी आंसर लिखो दैट विल आल्सो हेल्प यू से मध्ये तुमको हेल्प करबो आंसर काफी हेल्प करबो से मध्ये कोन करबो तुमको हेल्प करबो एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट हां कि नहीं सेटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंस रहिबो राइट क्या बुझा पड़बनी सॉरी that would be very important कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तुम कहि परिबो जोटा लिखि छि सोनु प्रसाद के वेरी लेंदी ना लेंदी प्रोसेस मु ताको डिफरेंट डायमेंशन ओपन करिकि कहूछि बोली प्रोसेस ता लेंदी भी हेइ पारे इजी भी हेइ पारे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कोन रहि छि भाई जितना में रिवर डिस्प्यूट को लिखुचे यदि डिफरेंट एंगल रु लिखिबा ना देन एग्जामिनर को लागिवो कि द पर्सन इज हैविंग पर्सपेक्टिव द पर्सन इज हैविंग व्हाट पर्सपेक्टिव दैट इज व्हाई ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट रहिछि जेमति हम इंडस वाटर ट्रीटी कथा नै जो मेकंग कथा नै जो राइट मेकंग रिवर रहिछि हमरो ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड दीज आर व्हाट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड and that is why these are the international based practices that could be replicated to the other rivers disputes around the world को हमें ताको कहि परिबा मेकंग रिवर डिस्प्यूट्स देखो कंबोडिया लाओस थाईलैंड वियतनाम रहिछि केते सब डिस्प्यूट्स रहिछि फिर भी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट वाटर शेयरिंग रहिछि ताको भितर डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करबे छै इजीली सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस एंड हियर इज आल्सो बेस्ट प्रैक्टिसेस कोठु आसे फ्रॉम द आम कहवा दानूब रिवर राइन रिवर अच्छी तो राइन रिवर एगुड़ा को किसी नहीं मन रखियार अच्छे खाली सिंपल लिखार अच्छे डिटेल लिखार नहीं जो तुमको रिवर डिस्प्यूट पचार ना तुमको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द रिवर डिस्प्यूट सॉल्यूशन होची कौन राइन रिवर मैनेजमेंट से किए किए अच्छे डिस्प्यूटेड देख जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड ये मैंने कोऑर्डिनेट करुच्ची एंड सॉल्यूशन नाइल रिवर ये तो 10टा कंट्री डिस्प्यूटेड अच्छी नाइल रिवर 10टा कंट्री डिस्प्यूटेड किंतु मैनेज करुच्ची दैट इज आल्सो देयर देन हम के मेडिएशन ऑफ थर्ड पार्टी को लिखियो आर्बिट्रेशन एटा को लिखि परिबो राइट जॉर्डन रिवर से भी डिस्प्यूटेड कोलोराडो रिवर डिस्प्यूटेड यूएसए मेक्सिको तो ये सारा प्रोसेस मु पूरा तुमको देखि दै छी राइट ए परिबो लिखि परिबो ना एबे होप एबे त माने इजी हे परिबो रिवर डिस्प्यूट मैकेनिज्म 7 तो एथरे मु कह देली कि इट वुड बी मल्टी टायर्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फ्लेक्सिबल एंड फेयरनेस हवा दरकार राइट जेमती इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस रही है ना दानूब रिवर पई तमे देखि परबो हैज रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स विथ दानूब रिवर से तार डिस्प्यूट को कहि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस भी रही एंड नाउ एठी तमे देखि परबो इंडस वाटर ट्रीटी ये सब किछ रही सो दिस इज हाउ कि एमिति ही आमे जेतरा आंसर लिखिबा स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्प्यूट को हमें डिफरेंट डायमेंशन रे ओपन कले लीगल फ्रेमवर्क को डिस्कस कले सुप्रीम कोर्ट रोल को डिस्कस कले सेंट्रल गवर्नमेंट रोल को डिस्कस कले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केमती हे परबो सॉल्यूशन रे हमें लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल देखले इंटरस्टेट कोऑपरेशन देखले टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन एनवायरमेंटल्स पॉलिसीज इंटरस्टेट कोऑपरेशन डिफरेंट डायमेंशन रे हमें ताको कवर कले एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर द मेंस एमिति पर्सपेक्टिव यू हैव टू ओपन द पर्सपेक्टिव you have to open the new dimension new keywords and put it water ethics water governance ये जोटा जोटा मु कहली सब वर्ड है ना ए परिबे समझते होप आई बिलीव के समस्त को
लेसन भल लगी जदि भल लगी कमेंट कर पार तुम मैंने जो मैंने रिकॉर्डिंग देख राइट। सो चले फिर तो ये थिला आज वाटर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया बट मु केस स्टडीज नहीं एथरे जदि मु गोटे गोटे रिवर डिस्प्यूट पढ़ाया को लगे ना तो रिवर डिस्प्यूट पढ़ाई मतलब 5 दिन लगे गोटे दिन महानदी गोटे दिन कृष्णा गोटे दिन कावेरी एमती पढ़ाऊथी कि मु गोटे ओवरव्यू फ्रेमवर्क देदेली तुमको कि दिस इज हाउ द रिवर डिस्प्यूट काजेस दिस आर द फ्रेमवर्क दिस आर द लीगल कंसर्न दिस आर द कॉन्करेंट लिस्ट हमको 260 हमको दिस इज अ ओवरऑल कंप्लीट आम कर विदिन 1 आवर पर जब मुझे गोटे गोटे रिवर डिस्प्यूट पढ़ाई लगे ना सरना 10 दिन पढ़ाऊ सरना चले। So with this I will end the today's session. Thank you everyone and good night to all. That's it.